Yes, good morning. Today we will be doing another important topic, current affairs topic. This kind of generalized topic, but it's very important. So, please join our test series program. Yes, tests are approaching. It's hardly a month, 1.5 months. You want to really improve your answer writing skills, please join. Same with sociology. अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज डू जॉइन अस नाउ. What is MSME? We're discussing something important. What is MSME? These are small enterprises, micro and small enterprises. Yes. जब हम एक्चुअल में recording, Corey sir, we have already started, right? So full screen. Full screen, okay. ठीक है, everyone. Now, MSME क्या है? MSME छोटे छोटे एंटरप्राइज होते हैं, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो. मतलब जो बीच वाले हैं वो उनका, जो छोटे हैं उनका, और एकदम जो एकदम स्मॉल, छोटे छोटे. How do we decide what one is medium, which one is small? Based on the turnover. कौन कितना का करता है, उसका पेड अप कैपिटल क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा क्या है. Now, somebody will ask me why these are essential. सबको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं क्या? Can any economy provide 100% employment? So how do you engage these people? You have to motivate these people to start something. The problem with us is we are still having a colonial hangover, colonial mindset, जहां पे हम लोग सोच लिए हैं कि भाई to become successful you have to get a government job, otherwise fools like you should not be sitting here. You would have been doing something meaningful. Are you not wasting your time? Why? Sarkari chakri darkar. It's a colonial hangover. The word Naukri comes from the word Naukar. Chakri comes from the word Chakar. It's as simple as that. तो सबको तो ना प्राइवेट सेक्टर दे सकता है ना गवर्नमेंट सेक्टर दे सकता है, बट इकोनॉमी हैज टू सस्टेन, इकोनॉमी हैज टू स्टैंड इन बाय इटसेल्फ. हाउ विल इट स्टैंड? बाय दिस एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड मीडियम. सबकी जरूरत है, हमें सबकी दरकार है. बिना इनके हमारे लिए हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाता. अगर ये डूब गए तो हम भी डूब गए. बड़ा बड़ा कंपनी, कैन दे प्रोवाइड एवरीथिंग? नो. जो जेट इंजन प्रोड्यूस कर रहा है वो मिक्सचर बना के देगा क्या? नहीं देगा ना. और जो मिक्सचर बना रहा है वो आपके लिए जेट इंजन बना के देगा क्या? तो सभी जो कंपोनेंट्स हैं, लार्ज इंडस्ट्री हो गया, प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज हो गए, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गए, मीडियम हो गए, स्मॉल हो गए, माइक्रो, सबका इकोनॉमी में अपना अपना स्थान है. सबका इकोनॉमी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है. सबका इकोनॉमी में अपना अपना इंपॉर्टेंस भी है. इसीलिए इट इज इंपेरेटिव दैट वी हैव ग्रोथ ऑफ एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, छोटे भी, बड़े भी और बीच वालों का भी. सबका ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है, होना नहीं. लेट्स से गांव में किसी ने एक छोटा सा मिक्सचर बनाने वाला है, उसका ग्रोथ होगा तो अच्छी बात है. जो जेट इंजन बना रहा है वो आपको आत्मनिर्भरता के ऊपर ले जाएगा, आपका डिपेंडेंस कम हो जाएगा. सबका कंट्रीब्यूशन अलग है, सबका डिपेंडेंस अलग है, सबका इंपॉर्टेंस अलग है. So that is why everyone is important. So we have some changes to the MSME bill.
we have certain changes, so we'll be talking about that. Yes, what are MSMEs? They are business classified by investment in plant, machinery, equipment and annual turnover. I just discussed few minutes back. Yes, regulated under this act. Who is taking care of all of it? It is the MSME ministry. We have a specific ministry for that which takes care of all the aspects of MSME. ठीक है? Now, why they matter? इन लोगों की इतनी जरूरत क्या है? Yes, they are driven by formalization. Listen, बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्रीज हैं इनका कोई फॉर्मल ये नहीं है. वैसे तुम बिस्किट बना रहे हो, वो पैर में दबाए हुए बिस्किट्स बेच तो रहा है, पैसे भी कमा रहा है, बट इज इट अंडर एनी काइंड ऑफ गाइडलाइंस? नो. Is it under any kind of regulations? No. So don't you think all these industries which are contributing informally should be brought under the formal structure, so that you get data, you get records, you may have tax base जो expand करे कि हाँ भाई वो अपना नाम क्या है तुम्हारा, बोलिए. बापी is having what? बापी is having a huge mixture factory, बट उसका कोई लेना देना नहीं है. वो 5 गांव में छोटे छोटे में करता है पर करोड़ों कमाता है. जीएसटी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बट पैसे कमा रहे हैं. तो उसमें फूड सेफ्टी का रेगुलेशन हो गया, इनकम टैक्स का रेगुलेशन हो गया, जीएसटी वाले रेगुलेशन हो गए, तो वो उससे बाहर निकल जाता है. सो डोंट यू थिंक इट इज इंपेरेटिव दैट वी हैव ऑल ऑफ देम इनटू द फॉर्मलाइजेशन? यस, उनको डिजिटली भी हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ डिजिटल processes can be involved in improving his businesses, how digitization can help all of us in improving our business model in itself. तो सारी चीजों में हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए उनको फॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है. और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए भी बहुत जरूरी है. सुनो, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखो, बहुत सारी छोटे छोटे चीज हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं. अगर हम खुद ही अपना शुरू कर दिए, लेट्स से व्हाट्स योर नेम? संजीव स्टार्ट्स अ पेपर बैग बिजनेस. पेपर का बैग, लेट्स से इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, he brought in certain patents, कुछ ये लेके आया, कुछ टेक्नोलॉजी से वो अपना पेपर बैग बनाता है. तो हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, हम संजीव से ले सकते हैं. यस, लेट्स से व्हाट्स योर नेम? मनीष. Manish starts another business which is similar, कुछ और बना रहा है वो, जो कि बाहर टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी लेके आया, यहाँ पे बनाया, बड़े स्केल पे, छोटे स्केल पे. सो डोंट यू थिंक टुमारो फॉर योर independence, financial independence, these MSMEs are essential component. These are necessary components. That is why it is needed. हाँ ना नहीं? विकसित भारत के लिए भी आपकी जरूरत है. देखो, this is the most important thing. 7.5 crore people have been engaged in the MSME sector. तो ये तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बाद आपके लिए MSME सेक्टर में है. तो दिस इफ गिवन एन इम्पिटस कैन हेल्प यू इन बूस्टिंग योर जीडीपी इमेंसली. ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर में. तो अगर हम इसकी मदद करें तो ये काफी ऊपर और उठ सकता है. क्या मदद करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 30% शेयर. गुड मॉर्निंग. यस सर, एक्चुअली under the MSME, सर एक्चुअली हमको बहुत सब फॉर्मल भी आंसर ऑप्शन में इनफॉर्मल भी आंसर है. कैन सर हम फॉर एग्जांपल हाँ हाँ हाँ, ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି हाँ हाँ हाँ. ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମେ ଧର ଫର୍ମାଲାଇଜ କରିବା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେନିଫିट्स ଦେଇ ପାରିବା. ମୁଁ ସେଇ ପଏंटଟା କହୁଛି. आई एम टॉकिंग दैट लेट्स से देयर आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही है.
Let's say you are in the formal sector, your everything is there, everything is noted down, you have your documents, you have everything. But let's say here Priyadarshini is what? Informal, उसका कोई records नहीं है. कल को उसको एक लोन चाहिए, will she be able to get the loan? नहीं ना. So that is what I am trying to say कि ये जो figures हैं, this may be something which is formalized. There may be a higher figure which is not captured. ଆମର GDP ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ problem କ'ଣ? One of the largest problems of GDP is that the informal sector is unaccounted. तो अनअकाउंटेड हो जाता है तो वो टैक्स बेस से बाहर चले जाते हैं. टैक्स बेस से बाहर चले जाते हैं तो आपका रेवेन्यू को क्या होता है? लॉस होता है. So that is why we should try to bring in all the MSMEs which are informalized into the formal economic structure. Okay, किए पचाटले कहला ना कहला? शुभश्री, हाँ शुभश्री, एबे बुझी पारलो? So that is what our effort should be. 30% share in GDP. So this is very, very important for us. 49% of total exports. Can you imagine? 49% of your exports come from the MSMEs. अगर हम और अच्छा करें तो it can be a higher proportion. Yes, higher proportion is not the question. Value के हिसाब से हम इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हम लो वैल्यू चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं. अभी हमको हमारी जरूरत है, इस बजट में हमने ये दिया कि हम हाई वैल्यूड चीजें बनाएं, हाई वैल्यूड चीजों को एक्सपोर्ट करें, यूज करें, सो दैट हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो. जीडीपी दी प्रकार ग्रोथ है परिवार. बापी एटी 100टा पैरासिटामल बनेला. यस, ईच इज 1 रुपी. टोटल जीडीपी इज 1000 रुपए. 100टा इंटू 10 रुपीज, एक 10 रुपए का है तो 1000 रुपए है तुम्हारा जीडीपी हुआ. संजीव सेस है फालतू ये सब चीजें नहीं करूंगा, मैं एक ऐसा मेडिसिन बनाऊंगा जिसमें मेरे को सिर्फ 10 बनाना पड़े और एक का वैल्यू है 1000 रुपए, तो जीडीपी बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली. सो व्हाई नॉट मेक हाई वैल्यूड गुड्स? सो इंडिया दिस टाइम अराउंड इट हैज शिफ्टेड इट्स बेस, इट हैज शिफ्टेड इट्स गियर ऑन मेकिंग हाई वैल्यूड गुड्स सो दैट जीडीपी इनहेरेंटली कैन राइज. आमे लो वैल्यू गुड करी बेसी बेसी प्रोडक्शन करी निजर जीडीपी बढ़ाया चेष्टा करवानी. व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू मेक हाई वैल्यूड गुड्स albeit in limited quantity. Later on we can expand. So automatically the GDP will start expanding. 51% in rural areas. So how this is important? If you can give meaningful employment in the rural areas, migration to urban areas will reduce. There can be a reverse migration. Yes, जो रूरल अर्बन डिवाइड है दैट कैन ऑल्सो गो. रीजनल बायसेस कैन गो. तो प्रेशर ऑन अर्बन एरियाज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपेरेटिव दैट वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग व्हाट? incentives to rural based MSMEs so that they can provide meaningful employment to the people at their home. बापी गांव कोठी? झारसुगुड़ा. एग्जैक्ट प्रॉपर और पास में कहीं पास थोड़ी गाँव रे तो चाकरी मिली गला है 10,000 रुपए. You get come to Bhubaneswar, you earn 15,000 rupees. Is 10,000 rupees not equivalent to 15,000 in Bhubaneswar? You'll have to spend on rent, you'll have to spend on food. सब माता पिता के पास खुशी से तुम रह के अपने घर का काम कर रहे हो. सोशल कैपिटल, आदमी खुश रहेगा तो सोशल कैपिटल भी बढ़ेगा. आदमी खुश भी रहता है ना, माँ बाप के पास रहता है कि नहीं? तो जेनजी का हम कही पारि नहीं, बट हम लोग तो खुश है भाई. हाँ, यू गेटिंग माय पॉइंट? सोशल कैपिटल, हैप्पीनेस भी बढ़ेगा आदमी का. I'll tell one more aspect. Like I have a factory where we make products, where women make their products for us. कहाँ पे बनाते हैं? अपने घर पे. We have a collecting agent.
that collecting agent goes to Bapi's house, Sanjeev's house, Manish's house, Gagan's house, and Priyadarshini's house. You all make how many? 8-10 baskets. You give it to me, then I'll sell. I have order tomorrow. I again tell my selling agent, go tell them that they have to make these many baskets. So you are making. So ये जो diffused growth model हो गया है, ये diffused हो गया. Hub and spokes model. I had spoken about hub and spokes model. It is like this. Let's say I have a food processing industry. Oh, ऐसा है. I think I have spoken in one of the classes. What happens is Manish has to make the plan is to make tomato sauce. So Manish is the tomato grower. Okay, he grows the tomato, he peels off the tomato, and he keeps with himself. He sends it to Bapi. Bapi does the crushing, mashing, and some preservative he adds. Then they send it to Priyadarshini. She is the owner of the food processing unit. यहाँ पे वो bottling करेगी, यहाँ पे वो preservative डालेगी, and she will sell. So at every stage, people got meaningful employment. So exactly same चीज हम कर रहे हैं. तो एटा कोन rural growth करिवो, diffused growth करिवो, inclusive growth करिवो. So that is why MSMEs are so essential. You getting my point? And remember one thing, जहां से आपके लिए raw material आ रहा है, let's say this is the industry, that is called the backward linkage. और जहां पे आप सामान भेज रहे हैं उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड लिंकेज. गेटिंग माय पॉइंट? समटाइम्स बैकवर्ड लिंकेज कैन बी द फॉरवर्ड लिंकेज. जिस गांव से आपके लिए टमाटर आ रहा है उसी गांव में भी आप टमाटो से केचप सेल कर सकते हो. सेम. So that is the thing. 72% of the digital transaction. So the higher the digital transaction, that shows that we have a level of financial inclusion which is very high. Got it? देखो, ये एक मेजर चीज which we discussed few minutes back. Almost 70% of the people belong to the backward classes. That means we are helping them to get out of the exclusionary practices and become a part of the mainstream society. Mainstream society का हिस्सा बनाने के लिए are we not helping? So I tell you, like मेरा में जितने लोग काम करते हैं, almost 80% are tribal women. They earn from their house. I have one more at Manipur. वहां पे भी जितने लोग काम करते हैं all women working from their houses. So जितने भी socially backward लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, educationally back, so you are providing them meaningful employment. You are giving them what? Loans. You are giving them incentives so that you can have higher participation of the woman. मैन अपना काम कर रहा है, उसको आज के डेट में सप्लीमेंट करने के लिए, घर चलाने के लिए वुमन का भी साथ देना जरूरी है. दिस इज अ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट. गांव में ही कर रहे हो, मिल के कर रहे हो, इससे सोशल बैरियर्स भी टूट रहा है. मिल के काम कर रहे हैं तो जितना आपका डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेटरी चीज है, ये भी टूट रहा है. सो MSMEs have a very very pivotal role to play in order to improve your economy, society, सब कुछ. समझ रहे हो? उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन वो होता है जिसमें आपका आप मैन्युफैक्चरर है कि नहीं वो पता करते हैं. तो देखिए 8.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स इतने हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं. दैट इज अ गुड थिंग. सो वी आर चेंजिंग. हमारा जो माइंडसेट था कि हम सिर्फ कंज्यूम करेंगे, नहीं, अभी हम प्रोड्यूस भी करेंगे, प्रोड्यूस करके कंज्यूम करेंगे. सो दैट इज अ गुड थिंग. लोन्स, हाँ
हाँ बढ़िया तो सेई कथा तो कहली आगो आमे जो कथाटा कहले किए कहले कहलो विनायक विनायक is saying sir one who is starting up a new venture must have a उद्यम registration बट उद्यम रजिस्ट्रेशन में दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या तो आप ट्रेडिंग में जा रहे हो तो ट्रेडिंग वालों के लिए तो दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर बट दैट ऑल्सो जो पॉइंट टिके समय पूर्व शुभश्री कहला कि सर आमर बहुत इन्फॉर्म तो व्हेन यू डू द उद्यम रजिस्ट्रेशन आर यू नॉट गेटिंग योरसेल्फ इनटू द फॉर्मलाइज्ड सेक्टर हाँ ना नहीं विनायक यस और नॉट you become a part of the formal sector जीएसटी आप भले जीरो फाइलिंग करो भले कुछ भी हो पर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स रह जाती है हमारा एक प्रॉब्लम क्या है जो विनायक ने एक अच्छा बात बोला वेरी गुड विनायक टोल्ड वन फैंटास्टिक थिंग सर इनको ये बात दिया है सुनो देयर इज वन गर्ल विनायक इज अर्निंग 1 लाख रुपी पर मंथ ही इज an IT engineer विनायक व्हाट इज योर बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल ठीक है तो ही इज अ फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं पे ये ओके या फिर किसी फार्म में काम करता है 1 लाख रुपए उसको मिलता है और यहाँ पे शुभश्री एक चाय वाली है शी ऑल्सो अर्न्स 1 लाख रुपीज बट हियर ही इज पेइंग टैक्सेस शुभश्री इज नॉट पेइंग टैक्सेस शुभश्री इज आउट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर बट Vinayak is part of the government wants to bring parity in the taxation system. Amara vertical parity to achi, horizontal parity nahi. So to bring that, all these things are being done. ठीक है विनायक समझे कि नहीं? Very good, thank you. PM विश्वकर्मा इसमें सब कुछ ही मिलता है आपको आर्टिजन कार्ड से लेके आप कैसे स्किल्स इंप्रूवमेंट होगा कैसे आपको इंसेंटिव्स मिलेगा लोन कैसे मिलेगा एवरीथिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग only for one cause self employment focus on self employment Gujarat Maharashtra Tamil Nadu these states are highly developed because of self employment we have not been able to do ame kamo karibako amar ichha hi nahi just before coming I was on a phone call somebody told me this problem we are doomed Why? Because of our mindset. We don't want to do anything. We have everything. Fertile land, minerals, आपके पास पानी, सब कुछ है. But एक चीज नहीं है. Behavior is a function of intention. Behavior is a function of intention. But we are not having the intention to behave in a manner where we can produce something. हो ना नहीं? Success is a function of intent and infrastructure. इन सब चीजों में बिजनेस में if you want to get succeeded, if you want to succeed, then it is a function of intent and infrastructure. आपकी इच्छा भी है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ पे आपके पास ना इंटेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर तब क्रिएट होगा जब आपके पास कोई इंटेंट होगा तो जिस वजह से हमारे बिजनेस ये में अरे यार हम इतने बेवकूफ लोग हैं वी आर गेटिंग केले फ्रॉम आंध्रा फ्लावर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल फिश फ्रॉम आंध्रा पॉइडा फ्रॉम आंध्रा एंड व्हाट द हेल आर वी डूइंग विथ आवर फर्टाइल लैंड Sir, we have sir Kaliya Yojana, sir Boliya Yojana, Noliya Yojana, where we will get money, sir. We have Subhadra, sir. We have ଆଉ कौन ଅଛି भत्ता अछि sir. हाँ मिशन शक्ति अछि. We have all these fraudulent schemes जिस वजह से हट हो हेले तो बहुत बड़ वाह क्या बात है एगुड़ा हेले सिना हमକୁ खुशी लागिवो विनायक these are the things which actually should make us happy we
वेरी गुड. Very good. He told a very, very good point. It is about somebody taking initiative. If Vinayak takes the first initiative कि भाई मैं करूंगा, फूल उगाऊंगा, हॉर्टिकल्चर फूल, उसको देख के संजीव बोलेगा अरे भैया तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमको भी कमाना है. Then संजीव also starts doing. Then बापी तो है अरे ये बेवकूफ लोग इतना इतना पैसा छाप रहे, मैं भी करूंगा, मैं भी छापूंगा पैसे. So this is about somebody bringing the change. That is why be the change you actually aspire to see. You have to be the change. If you change yourself, जो कथड़ा में कहते टीका संपूर्ण intention. It is about intention. हमारे पास सब कुछ है. Only thing that we lack is intention. The day our intention becomes, Odisha can be somewhere. हमारे लोग बेवकूफ नहीं है, हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं. We are not film star worshipping crowd. No. Go to South India, you'll see लोगों का मतलब इतना they are so backward in terms of their mindsets. You are way ahead. The entire Eastern India, but we are still backward because of our mindsets. Hmm. सही कथा कहले. I just told few minutes back. NFSA, National Food Security Act. मुफ्त की चीजें मिल रही हैं आपको, मुफ्त की चीजें मिल रही है तो आप काम करने का मोटिवेशन नहीं है. दैट इज व्हाट आई टोल्ड फ्यू डेज बैक आल्सो व्हेन आई वाज टीचिंग व्हाट सब्सिडीज. सब्सिडीज शुड बी कंडीशनल. ये किए कहला कहला लक्ष्य. हु वाज दिस हु टोल्ड अबाउट राशन कार्ड? ओके, गोटे कथा देखो, धर आई मेक an effort wherein I told you that you will get food grains if at all you do this work, then that is a motivation for you. जब आपको कुछ भी अर्न करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, why would you work? So everything should be conditional. सारे स्कीम, सारे बेनिफिट शुड बी कंडीशनल. आप ये काम करो, हम आपको ये देंगे. Then these things can. हाँ एसएचजी जीवो, एसएचजी जीवो, एसएचजी जीवो, एसएचजी जीवो, एसएचजी जीवो. मिलेट मिशन, हाँ मिलेट मिशन भी देखो सेमाने काम दे आर फोकसिंग, बट point is semane they will have to ensure the people to have small groups, agencies who will work in making meaningful change. They can be enablers, they cannot be the corruption बहुत मुझे पीछे को जाऊन because it's an economic. He is correct. He is correct. Mission Shakti हो गया. All these organizations have been used more for political gains rather than for MSME development. I don't want to get into politics, but this is the reality. So we have to use these agencies in a manner wherein people can actually benefit. What these people are saying, they are in the ground, they know it. તમે ભુવનેશ્વર છે તમକୁ જଣା પડીବନି સેଟା. You may only see it on newspapers कि फोटो खींच दिया गया है, but reality में there is something else. No, you may not pay taxes. गोटे लिमिट तळକୁ हेले तमु टैक्स दबा दरकार नहीं. जीएसटी रे भी अछि 25 लाख तळକୁ हेले तमु किछि दबा दरकार. तमर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तमे, तुम नील जीएसटी भी फाइल कर पाए. टैक्स के लिए नहीं हो रहा है ये, इसलिए हो रहा है कि फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, एक डेटा होगा सरकार के पास कि कौन क्या कर रहा है. बुझी पाला? कल को तुम बम बनाने लग गए, क्या पता. हाँ ना नहीं. Even every agencies, everything.
everything that you make should have certain हाँ actually sir মানে जो পয়সা মানে গভর্নমেন্ট যেটা আସୁଛି স্যার সেটা যেটা ଆମର যেটা এমএসএমই ট্যাক্স যে 30 हम्म हम्म ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ସବୁ ଆମର ଇଏ ଟ୍ରାଇବାଲ हम्म ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ हम्म ସେ ପଇସା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟି କି ମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକି ମାନେ ଆସୁଛି he is correct he is correct ठीक what he is saying is correct that there is a lack of awareness about your rights with regards to this there is lack of awareness about what you will get जिस वजह से बहुत सारा पैसा वेस्ट भी हो जाता है बहुत सारा पैसा रिटर्न आ जाता है बहुत सारा पैसा ऐसे इधर उधर रैंडमली खर्च कर देते हैं मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा तू मुझे 3,000 रुपए दे देना यू गेटिंग माय पॉइंट हाँ 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 आई एम नॉट आई टोल्ड यू नो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द इरेगुलरिटीज इसमें अगर इरेगुलरिटीज एक क्लास लग जाएगा मुझे खाली इरेगुलरिटी पे बात बिकॉज आई वर्क इन दैट सेक्टर आई नो what kind of things happen fake artisan cards fake workers fake self-help groups I have gone to people who have self-help groups 6 गाड़ियां थे 6 cars 4 कुत्ते it was a palatial building ये है self-help group funded by the government is it not corruption सर जो मॉडर्न मंडी सर चाहिए तार एक्चुअली काम करते हैं वर्तमान मॉडर्न मंडी देखंतु एटा मु आपन मॉडर्न मंडी जेतले हो मु एग्रीकल्चर विषय जेतले आसीबी कहिबाकू सेतले मु ता सहित जोडी कहबो आई विल जस्ट टेल वन थिंग what we wanted to do at that point in time was that we wanted to integrate the farmer or we wanted to integrate let's say somebody who is making any kind of produce directly with the consumer one of the largest problems or the biggest problems in India is middlemen yes it was Subhashri you asked right Subhashri yes sir one of the biggest problems with this is middlemen अभी एबे किए कहतला विनायक वाज टेलिंग अबाउट बैगन बैंगन 2 रुपए में खरीदे होंगे 2 रुपए में उनका बेचे होंगे उनके गांव वाले 2 rupees and the same eggplant would have been sold at 25 rupees per kilo so the government wants to remove the middleman from the entire what chain सप्लाई चेन से मिडिलमैन हटाने की कोशिश की गई थी इनफैक्ट द फार्म लॉज ऑफ 2021-22 में जो हमने फार्म लॉज लाने की कोशिश की थी दैट वाज प्रिसाइसली अबाउट दिस सेकंड पॉइंट Subhashri has 2 mandis near her home okay Subhashri you have how many mandis yes sir 2 mandis let's say I am giving an example 2 mandis एक 2 किलोमीटर दूर है एक 5 किलोमीटर दूर है 2 किलोमीटर दूर वाले मंडी में उसको मिल रहा है 5 रुपए पर किलो और 5 किलोमीटर दूर वाले ये में उसको मिल रहा है 10 रुपए पर किलो वेयर शुड शी सेल हर प्रोड्यूस 5 किलोमीटर वाले में बट अंडर योर APMC एक्ट्स you cannot sell your produce in any other mandi other than the 2 kilometer one so will you get price discovery हो रहा है क्या are you getting the right remuneration so the government wanted to break this shackle and wanted you to sell wherever you get the right price the modern mandis वाले concept इसी के concept यही सब पॉइंट्स में बने हुए थे बट वी डिड नॉट अलाउ बुझी पारल शुभश्री सब मंडी सेम प्राइस करी हबुनी परा सेटा करी पारु नाहंती काहेकि मिडिल मैन रही जाउचंदी मझिरे वी वांट टू रिमूव देम आ गोटे पॉइंट लास्ट पॉइंट आई टेल यू सिंस यू डाइग्रेस्ड मी आई टेल यू जो फार्मर कर रहा है उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसको ग्रो करे वो विनायक टुक अ लोन फ्रॉम Priyadarsini okay
विनायक टुक अ लोन फ्रॉम प्रियदर्शनी, लोन लेके उसने वो बैंगन उगाया, फिर उसने बैंगन, अब जितना दिन पैसे लेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। इमीडिएटली द डे विनायक हार्वेस्ट इज क्रॉप, लेके सीधा दे दिया प्रियदर्शनी को कि भाई तुम ही बेच दो, मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दिया। तो एट अ मतलब थ्रो अवे प्राइसेस दे सेल इट टू द मनी लेंडर्स और द वन द मिडिल मैन जो पैसा दिया होगा। तो विल दे गेट द रिटर्न? इन सब चीजों से बचने के लिए ही हमें एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करना चाहिए। ये सब चीजें, दीज आर द प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट वी कैन डिस्कस, एक क्लास लेके ही हम पूरा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। विनायक गॉट इट? हाँ, सुबुनी रे। GI tag रो MSME रो सेमिति देखो किछि ये रो, इवन GI tag will only give you that this particular product belongs to a particular area with certain characteristics which cannot be copied. You will get a higher value if you are making the original things. नहीं तो कॉपी बहुत हो जाता है ना, ट्रेडमार्किंग इसलिए हो जाता है, कॉपीराइट इसलिए हो जाता है। सबुठु मेजर प्रॉब्लम GI टैग रो तो फिर भी ठीक है, सबुठु मेजर प्रॉब्लम इज विथ हैंडलूम। हैंडलूम में कोई कॉपीराइट नहीं है, सेम शर्ट को वो बना देगी, तू 500 रुपए में बनाए वो 200 रुपए में बना देगी, एंड यू हैव नथिंग टू डू इट। So for your products which are indigenous, which are essential, which are civilizational, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ MSMEs हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करते हैं, उनका बदउपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसीलिए ये सारी चीजें दी जाती है। लाइक रसगोल्ला, बंगाली कहउछन्ति कि रसगोल्ला आमर, किंतु ताकर केमिति हेई परिबो? इट इज आवर्स। there are multiple, फुलवाणी रो जो तमरो हळदी, that is different, हाँ, that is different from what you have outside. So आपका डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से ही आपको GI टैग मिलता है। सो इसका वैल्यू अलग होगा, उसका वैल्यू अलग होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप दोनों को मिला नहीं सकते, एडल्टरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ मैक्सिमम टाइम का जो बेनिफिशियरी म्हणजे हाँ प्रदूषण पण म्हणजे स्टॉप करे में बहुत डीबीटी करा में काम समस्त में लिंक करे पे सेक्टर ऑन द डीबीटी किसी सेक्टर शुणा शुणा हाँ शुणा तुम्हें माने मते एमिति भी डाइग्रेस कर सालन, तो शुणा आ गोटे कथा शुणी दियो। You have digressed me totally. I don't think I will be able to complete my second topic today. Still you listen. This is your, no problem, पाठ पढुचे परा हमें DBT. This is your indirect benefit transfer. ठीक है सुभश्री, आज सर हमको इससे क्या हो सकता है? Let's say what is direct benefit transfer? For direct benefit transfer you need something known as JAM, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, तीनों जरूरी है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पैसा मिला है? What happens is direct benefit transfer में you are directly giving the money, direct. Subhashri is the beneficiary. I know she is the beneficiary. Directly I will be sending the money into her account. When I am sending the money into her account, तो क्या होगा? मु आगो ताको जिनसो दे था, मैं उसको एक लैपटॉप देने वाला था, भाई खरीदूंगा, टेंडर डालूंगा, ट्रांसपोर्ट करूंगा, उसको दूंगा, ज्यादा कॉस्टली होगा। रादर आई सेंट हर द मनी डायरेक्टली। ओके, सो इट विल बी चीप। कौन सुभश्री, हाँ ना नहीं? इट विल बी चीप, लेस प्रोन टू करप्शन। आग कौन शुभश्री को ये तले बसला प्रियदर्शिनी, देवी ना देवीनी, तू मत 2000 टका दे ताहले मु तते लैपटॉप देवी, हाँ ना नहीं? सो इट वाज अ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन लीड्स टू डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज मे लीड टू करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। सो आपने आउटराइटली उसको हटा दिया। यस, करप्शन नहीं है,
बट इसमें प्रॉब्लम है, मैंने 45,000 रुपीज शुभश्री को भेजे थे टू बाय अ लैपटॉप। शुभश्री क्या की ना, सलवार कुर्ता, जारा के कपड़े, गुच्ची का बैग, ये सब खरीद के उड़ा दी। शुभश्री, आर यू यूटिलाइजिंग इट फॉर द इंटेंडेड पर्पस? हैं? कैन यू हियर मी? No, sir, it is completely. Sir, एग्जैक्टली, it is intent. गॉट इट। तो इंटेंडेड पर्पस पे ही यूज है नी। तो आर यू सर्विंग द पर्पस? नो। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको रिड्रेस करें। देयर इज एब्सोल्युटली नो मैकेनिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज एब्सोल्युटली नो मैकेनिज्म वेयर इन वी कैन डू एनीथिंग। थर्ड, और एक प्रॉब्लम भी है, जब सबके अकाउंट में पैसे डालते हो तो तुम सबके अकाउंट में पैसे आ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा ना। अकाउंट में माल है भाई 45,000 रुपए, बापी के पास है, संजीव के पास है, मनीष के पास है, गगन के पास है, तो ना कौन, विष्णुप्रिया के पास है, प्रियदर्शिनी के पास है, शुभश्री के पास है, विनायक के पास है, लक्ष्य के पास है, सबके पास है। एग्जैक्टली कहूची समस्त पाखे पैसा आसला, डिमांड बढ़ी जीव, कुछ भी खरीदने का डिमांड बढ़ जाएगा। विल इट नॉट लीड टू इन्फ्लेशनरी कंडीशन? जब पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तब क्या करोगे भाई? कौन? शुभश्री, ठीक ना? नहीं? Yes, sir, absolutely. So that is the problem and good thing associated with direct benefit transfer. तो हम क्या कर रहे हैं? शुभश्री इज माई, इसमें कैसा करप्शन होता है देखो, आई हैव टू गिव 45,000 लोन टू शुभश्री। शुभश्री को 45,000 लोन कराई देली भाई, 45,000 5,000 रुपए मेरे को दे देना। यू मे नॉट यूज इट फॉर एमएसएमई, यू मे यूज इट फॉर वॉट एवर यू फील लाइक। तेरा कंपनी डूब गया, नहीं हुआ, मेरे को कोई फर्क। तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द इंटेंडेड पर्पस, जिस वजह से एमएसएमई ग्रो भी नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द करप्शन एट द बॉटम। कौन है शुभश्री? यस और नॉट? करप्शन करिए पड़े एवरीवन ऑनलाइन। हाँ, हाँ, ना ओडिशार डेवलपमेंट कथा नुहे। देखो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आम भावुले कि वन नेशन वन इंश्योरेंस, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये हम लोगों को हेल्प करने का देखो काम करूँ। ये स्टेट कॉन्सेप्ट भाविया कथा नुहे। कार देह खराब कौटी जो हम क्या कर सकते हैं उसका, ये आम भावानी। जो तुम पॉइंटा कहला, आई एग्री विथ यू कि ओडिशार पैसा ओडिशा को जीवन, बट लेबर हमेशा माइग्रेटरी होता है। तो जहां पे भी जाता है वहां पे उसको बेनिफिट्स देना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरत है। बिकॉज द लेबर ऑल्सो पेज टैक्स, कैसा? इनडायरेक्टली थ्रू जीएसटी। कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए कहीं भी, बुझ पा। व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, बट दैट हैज टू बी ओवरलुक्ड। ठीक है, आगू जीवा। हाँ देखो, दिस इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई डिस्कस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी हम सारे प्रॉब्लम, 86% of the manufacturing MSMEs are unregistered. 1.1 crore of 6.3 crore MSMEs are GST registered only. 5 करोड़ का MSME रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इनफॉर्मल में ही बैठे हुए हैं। सो दे आर आउट ऑफ द टैक्स ब्रैकेट्स, बेनिफिट ब्रैकेट्स, एवरीथिंग। आउ व्हाट ए प्रॉब्लम। Subhashri is with a big PSU. She buys stuff from one particular MSME. एक MSME से जब सामान खरीदती है, what happens? She'll have to pay.
बट ये जो बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं उनका पेमेंट साइकिल थोड़ा लेट होता है भाई, उतना दिन वेट करते करते एमएसएमई डूब जाएगा. सो वी नीड टू हैव डिफरेंट पेमेंट मैकेनिज्म्स फॉर देम. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू पैसा नहीं है, किसी इनफॉर्मल जगह से पैसा ले रहे हो जहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सब चीजें करने से क्या होगा, डूबने की संभावनाएं ज्यादा है. टेक्नोलॉजी तो नहीं है, इसीलिए हम कर रहे हैं कि फॉर्मलाइज करके आपको टेक्नोलॉजी के स्किल्स दे पाए. बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे रेगुलेशन. ये कंप्लायंस चाहिए, वो कंप्लायंस चाहिए, ये करोगे वो करोगे तभी पैसा मिलेगा. ये करते करते आदमी थक जाएगा. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಕಮ್ಮ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ हम्म. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ हाँ. सर ସେମାନେ भी एक इम्प्रूव करते थे कुछ हमारा लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट पाई हम्म. सर ସେମାନେ एनजीओ ଥାନ୍ତି କି सर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ माने थांती, एनजीओ माने थांती, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, they are there, but sometimes NGOs themselves do this thing also. वो सरकार से पैसे लाके दे आर वो लोग करते हैं. बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो लोग करते हैं, वो अपना पैसा भी खर्च करते हैं. लाइक आई विल टेल यू, हम लोग जो बास्केट्स बना रहे थे, फॉर अस द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डन बाय टाटा ट्रस्ट. हमारे सारे वर्कर्स को टाटा ट्रस्ट ने ट्रेनिंग दिया हुआ था. जब उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया हुआ था, उसके बाद उनके पास जॉब नहीं है. Then we pitched in, we went in, wherein we started giving them orders. So this has to be a collaboration between NGOs, companies and government. Government पैसा दे सकता है. हाँ. सर आपण लास्ट टाइम सर कंपनी एचपी आले तर तो सेड सर फंडिंग असतो हाँ असतो. ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏମାନେ କହିଲେ କି ଭାଇ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କଲେ ଆମେ ତମର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବୁ. So that is why if at all you are getting money for training of these basket workers, please utilize the money for training only. Don't utilize it for political things. Do not utilize it for lavish affairs. नहीं चाहिए. आपको पैसा दिया जा रहा है, आप उसी क्षेत्र में काम कीजिए, उन्हीं लोगों के ऊपर काम कीजिए जिनके बेनिफिट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया है. ओके शुभश्री, एबे सेटा हो नथिला. दैट इज व्हाई एनजीओस हैव बीन so wary about the FCRA, because they were getting money for something, spending it on themselves or spending it for something else. एक्सपोर्ट बैरियर से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, हमारे पास उतने अच्छे अच्छे मशीनरी नहीं है, तो हम उतने स्टैंडर्ड की चीजें नहीं बना रहे, तो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं. यस, मार्केट नहीं, हम मार्केटिंग, दैट इज व्हाई आई गिव यू द एग्जांपल. द टाटा ट्रस्ट गेव द ट्रेनिंग, वी वेंट देयर समहाउ, तो हम उनके चीजों को मार्केट कर पाए. अगर मार्केट कोई और एजेंसीज है नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनकी चीजें वैसी पड़ी पड़ी सड़ जाएगी ना. सो गवर्नमेंट नीड्स टू मार्केट देम. गवर्नमेंट एक नया एजेंसी खोला ONDC, जस्ट लाइक अमेजन खुद का है ONDC, उसके थ्रू में भी कर रहा है. यस, सप्लाई चेन एक्सेस डोमिनेटेड बाय, देखो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ही छोटा बिजनेसमैन को पूरा पूरी खाई जाऊँ. दे कैन गिव डिस्काउंट्स, दे कैन गिव लॉट ऑफ बेनिफिट्स. छोटे बिजनेस तो नहीं दे सकते हैं. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. द पेटीकोट बिजनेस इज अ 50,000 crore business. You will not understand. These are small businesses. तुमको लगेगा कि ये बहुत ही घटिया चीज है. Even the underwear business is worth crores. जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको बेनिफिट मिलता है ₹1 या ₹2 पर पीस. जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो ऐसे क्रेडिट में दे देता है, ले जाओ थोक के भाव ले जाओ. बट जो छोटा मैन्युफैक्चरर वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, तो ही विल बी ड्रिवन आउट ऑफ द कंपटीशन. बड़ा मैन्युफैक्चरर विल एंजॉय. तो आपको पता नहीं चलता, आप जो छोटी छोटे ट्रिवियल चीजों के बारे में जो सामान बनता है ना, वैसे बहुत है जिसका मार्केट वैल्यू करोड़ों में है. यू गेटिंग माय पॉइंट?
सब मेजर प्रॉब्लम लेबर शॉर्टेज, कोई काम करने के लिए राजी नहीं। आई वी डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक, nobody is interested to work. Yes, registration process, bureaucratic hurdles, red tapeism. सुबश्री मैडम के पास गया, मैडम बोले कल आओ, परसों आओ, नर्सों आओ, लंच ब्रेक है, डिनर ब्रेक है, ब्रेकफास्ट ब्रेक है, तो मैं थक गया, मैं और गया ही। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, है एआई रे प्रभाव पड़िबा कथा, किंतु आमे तो एपन यूज करिने, कले मे भी बेनिफिट्स हे परियो। इट विल टेक टाइम। आमे एआई रे कौन करूचे, हम एआई में मोदी जी की शादी करवा रहे हैं एआई करके। दैट इज हाउ वी हैव बीन यूटिलाइजिंग। तो देखो तो ट्विटर पे सब यही सब गंदे गंदे चीज निकाल रहे हैं, कोई किसको मार रहा है, कोई नाच रहा है। दिस इज हाउ वी हैव बीन यूटिलाइजिंग एआई। कोई प्रोडक्टिव काम में हम लोग यूज नहीं करते। बट यस, इंडिया इज फोकसिंग हेवीली ऑन एआई नाउ। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सर्वम एआई। सर एक्चुअली होल प्रोसेस सर गवर्नमेंट रे बहुत सारे लैग रहउछ, पब्लिक रे भी लैग। सुनो गोटे कथा, I was teaching ethics somewhere. I'll tell you exactly what I told there. I'll tell the same thing. Do not blame the government. Do not blame the bureaucrats. They come from you. It is a problem of the society. If the society is incorruptible, your politicians, your bureaucrats will remain incorruptible. It is your problem. It is the society's problem which is creating these people. हमें ही प्रॉब्लम। एबे विनायक मते कहला कि सर मोर ए लाइसेंसटा दरकार। विनायक आसी मते कहला सर मोर ए लाइसेंसटा दरकार। ओके सर मो पाखरे किंतु ए डॉक्यूमेंट नहीं सर, ए प्रॉब्लम। विनायक 5,000 रुपए दे, मैं करवा दूंगा तेरा। विनायक इज रेडी टू गिव 5,000 रुपीज। नो, इज विनायक सेइंग नो सर मैं लाइसेंस बना के आता हूं, आई विल वेट फॉर 1 month? विल विनायक से नो? सो एज अ सोसाइटी वी आर करप्ट, एज अ सोसाइटी वी हैव द प्रॉब्लम, and they are, we are some, huh? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही तो मैं बोल रहा हूं, हमारा ही प्रॉब्लम है भाई। हम ही लोग ऐसे हैं, जीरो सिविक सेंस। एक दिन का देशभक्ति कल हम बहुत दिखा दिए, सबने झंडे लगा दिए, घर पे झंडे लगाए, स्टेटस डाल दिए। अगले दिन वही चाय पिए हैं ना। आमको दरकार डिक्टेटरशिप, जे बाडेइबो आमको, ताहले ही आमे मनीष हवा। देखो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट आई विल टेल यू वन एग्जांपल हाउ देयर इज अ चेंज। तमे आज मते पूरा ही डाइग्रेस कर दियो, बट स्टिल सुनो। अब कर दिए हो तो अब क्या कर सकता हूं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, very few people in Bhubaneswar had a car at that point in time. I'm talking about 88, 90. Hardly. Mine was the 4th Maruti car in Odisha, 50th Maruti car in India. Okay. ठीक है, तो एक बात देखो, मैं क्या बोल रहा था, नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। क्या समझा रहा था? नहीं नहीं, एबे विनायक को कौन, अरे मैं भूल गया यार। हाँ, तो मैं कभी अपने बापू को देखा नहीं हूं कि वो कभी सीट बेल्ट लगाया है। नेवर। हमारे कार में सीट बेल्ट था, वो मेरे को 2013 में पता चला। आई गॉट टू नो इन 2013। आई हैव नेवर सीन माय फादर वेयरिंग अ हेलमेट एवर इन माय लाइफ। अब प्यूनिटिव एक्शन से 1,000 रुपए फाइन, 1,000 रुपए फाइन है, तब सब लोग हेलमेट पहनना चालू कर दिए। यस, चालू कर दिए। अभी तुम्हारा बिहेवियर में ही आ गया कि मेरे को हेलमेट पहन के निकलना है। यस, तो हाउ डिड दिस हैपन? इट इज बिकॉज ऑफ प्यूनिटिव एक्शंस। विदाउट ये 1,000 रुपए, विदाउट दिस 1,000 रुपए। सो यू नीड something which will punish you so that there is a behavioral change.
बिहेवियरल चेंज होगा तभी जाके सोसाइटी में चेंज होगा, बिकॉज सोसाइटी इज अ सम टोटल ऑफ पीपल। कौन विनायक, ठीक ना नहीं? तो इसमें हमको इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर कल को रूल हटा दे तो फिर से कोई हेलमेट नहीं पहनना है। भाई हेलमेट मुझे पहनना है अपने सेफ्टी के लिए। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फ्रॉम टू साइड्स। वन इज द फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी जो आप अंदर से निकल रहे हो, और एक है इन्नेट अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल में आपको रूल्स रेगुलेशंस आएगा आपके ऊपर। इन्नेट अकाउंटेबिलिटी के नहीं ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा। हमारे अंदर बस फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी है कि ऊपर से हमको दबा दिया गया, अंदर से हम नहीं चाहिए हेलमेट, जय छपरी। यही है, दिस इज व्हाट द कल्चर हैज बिकम। हमको कुछ समझ नहीं है। तो हम अंदर से जब चेंज ना, हमारा मोरल कंपास जब ठीक ना हो, हम चेंज नहीं हो सकता। हमारा सारे सेक्टर्स ही डूबे हुए मिलेंगे हमको, बिकॉज एज पीपल वी आर बैड। कौन सुबह ठीक ना नहीं? अकुआ अकुआ एजुकेशन মানে মানে কিছু মাত্রায় ডেভেলপ হয়েছে কিন্তু টেকনোলজি ডেভেলপ হয়নি স্যার ইন্ডিয়া সেটা देखो এটা ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଜୁକେସନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଲିଟରେସି। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन इज लिटरेसी प्लस विजडम। हमारे में विजडम नहीं, हम लिटरेट है, पढ़ लिए, बट कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुआ है। कैरेक्टर बिल्डिंग होता तो हम अच्छे से रहते। देयर वुड नॉट हैव बीन एनक्रोचमेंट्स ऑन रोड, देयर वुड नॉट हैव बीन बिल्डिंग्स विच हैव 1 इंच का जगह नहीं छोड़ा है, रोड्स घटिया बना के रखे हैं। हमारे एजुकेशन नहीं, हमारे लिटरेसी रेट सेम विद केरला। केरला बोलता है एजुकेटेड, एजुकेटेड, केरला इज 100% लिटरेट। एजुकेशन नहीं है। अल्कोहल सबसे ज्यादा वहीं पीते हैं। काहे का लिटरेसी भाई? लिटरेसी का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया, जो अपना साइन कर दिया वो हो गया लिटरेट, जो समझ गया कुछ कुछ क्वेश्चंस बस हो गया। सो देयर इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मेरे गांव में एक आदमी मेरे से आके पूछता है कि रिवर इंटरलिंकिंग का पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने एबल्ड राइटर राइट संबंधी लिटरेसी अकाउंट सर कंसिडर काई रखला এটা ଗୋଟେ এটা କହୁଛି ବା, दिस अ फैलेसी ऑफ द गवर्नमेंट। यू हैव टू इंक्रीज द उसका डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा हमको। अब इसका डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा, तो सारा के सारे हम दिखा देंगे कि भाई हमारा लिटरेट है बोल। बट आर वी रियली लिटरेट? नो, नथिंग। Government at that point in time, I think it was before 2014, at that point in time they decided कि literacy rate बढ़ाना है, तो ये this is the best mechanism। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଆରେ କଣ ଶିଖିତ ତମ टीचर ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ଜଣା ନାହିଁ, ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। तुम्हारा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पुअर, लिटरेसी स्टैंडर्ड्स पुअर, दैट इज व्हाई यू आर नॉट, स्किल्स नहीं है, जिस वजह से आपको जितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ क्वेश्चन। वेरी गुड सुभाश्री टोल्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। आई एम अंडर एम्प्लॉयड, है ना? अब ग्राउंड तले अच्छे अंडर एम्प्लॉयड, आई एम बीनीथ द ग्राउंड, अंडर एम्प्लॉयड। अंडरग्राउंड में पढ़ा रहा हूं मैं अंडर एम्प्लॉयड है। तो शुण, तो जिते भी प्रॉब्लम्स रहिबा हमर एमएसएमई रे, हम गोटे टाइम बाउंड टाइम में ताकर सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। डिस्प्यूट्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड इन 90 डेज। उनका माइनर प्रॉब्लम्स, कंप्लायंस के प्रॉब्लम्स को उसको क्रिमिनल ऑफेंस में ना लिया जाए, उनको हेल्प किया जाए कैसे इससे निकलो। उनके ऊपर क्या करना है, जो पीएसयूज हो, कंपनीज हो, उनको मैंडेटरीली बोलना चाहिए कि आप इतना % जो सोर्सिंग कर रहे हैं एमएसएमई से कीजिए, ठीक है, और पैसे उनको ऑन टाइम दे दीजिए। और क्या करें, उनके लिए डिजिटल फ्रेमवर्क्स बनाइए सो दैट उनको और ज्यादा बेनिफिट्स मिले। गोटे आसला जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां पे आप लोग सब एनरोल कर सकते हो और गवर्नमेंट के जितने ऑर्डर्स आते हैं आप वो उठा सकते हो। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट।
ओके, तो क्रेडिट दीजिए, डिजिटाइज कीजिए, क्लस्टर ग्रोथ कीजिए, स्किलिंग। क्लस्टर ग्रोथ का मतलब यह है कि हम एक बंच ऑफ पीपल वी स्टार्ट, छोटे छोटे कंपनीज है, सिमिलर वर्क दे आर डूइंग, ओके, similar work they are doing. He is also into sari manufacturing, he is also into sari manufacturing, they are also into sari. That is the sari cluster in itself, in a particular geography. That will bring in what? Efficiency. That will bring in competence. That will bring in the innovation. कि भाई एक्सपर्ट लोग हो गए ये लोग, जो चाहिए बना देंगे। तो क्लस्टर में करोगे, नॉट आइसोलेटेड, नॉट इन साइलोस। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब अगर आप करेंगे तो एमएसएमईज विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया। 1.5 घंटे खा गए मेरे, मैं 2 टॉपिक पढ़ाने वाला था। ठीक है, आई वांटेड टू टॉक अबाउट यूपीआई। यूपीआई में जो आपका पैसा लगाने वाले हैं, जो चार्जेस, दैट आई टॉक टू देम एंड वी विल हैव वन डे सम डे इन द वीक, जिस दिन ये वाला क्लास कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ, नो प्रॉब्लम, सॉरी कौन म वी विल एई भले रहिबो। तुमको भल लागिला तो बस, तुमे खुशी तो आमे खुशी, आपण माने खुशी तो आमे खुशी। बाय बाय। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.